یہ کل ہی کی طرح لگتا ہے، لیکن تقریباً 1 سال ہو گیا ہے جب میں نے پہلی بار گھر چھوڑا۔ مجھے عظیم شہر لارسا کا راستہ معلوم تھا، تاہم ان پہاڑی راستوں میں اپنا راستہ بھول کر ایک انجانے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ وہیں مجھے ایک ننھا سا خرگوش دکھا۔ مجھے یہ لگا جیسے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا پیچھا کروں۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے کس سے ملوائے گا۔ ٹھیک ہے ننھے خرگوش، میرا انتظار کرو، میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ ہاں میں تمہارے پیچھے ہوں۔ ارے تم کہاں لے جا رہے ہو؟ بھائی سنو تو۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ ارے تم بہت تیز ہو۔ ارے تم بہت تیز ہو۔ ارے کہاں لے جا رہے ہو تم؟ ارے کہاں لے جا رہے ہو تم؟ ارے میں تھک گیا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اوہ تم بہت تیز ہو، دیکھو۔ دیکھو تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے۔ ارے دیکھو۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ اے اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ کے لیے ساری عزت، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اللہ سب سے عظیم ہے۔ ارے کون ہے اس غار میں؟ کون ہے ادھر؟ اندر آ جاؤ، بے فکر رہو، تم یہاں محفوظ ہو۔ بیٹا، تم اس گمنام جگہ پر کیسے آئے؟ میں لارسا کے شہر جا رہا ہوں۔ اس ظالم بادشاہ نورسس کے شہر؟ نورسس بادشاہ ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ بیٹا بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عبید ہے۔ آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں بادشاہ کا اگلا جادوگر ہوں گا۔ تم جادوگری کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ابھی تم بچے ہو۔ سناٹس بادشاہ کا مشہور جادوگر ہے، جس نے اپنے شاگرد منتخب کرنے کے لیے ایک مقابلہ منعقد کیا، جس میں میں نے بھی حصہ لیا اور میں وہ مقابلہ جیت گیا۔ میں شہر جا رہا ہوں اسے سبق لینے۔ تو اب جادو کے بھی سبق ہوتے ہیں؟ ضرور شہر میں چیزیں بہت بدل گئی ہوں گی۔ اس بادشاہ سے پہلے جب میں وہاں رہتا تھا، یہ بہت اچھا شہر تھا۔ آپ کتنے عرصے پہلے رہتے تھے اس شہر میں، اور آپ کیا کرتے تھے؟ میں بادشاہ رابید کے زمانے میں قاضی تھا، جو کہ بادشاہ نورسس کا باپ تھا۔ اس زمانے میں ہم اللہ کے احکامات کے مطابق حکومت کیا کرتے تھے، لیکن اب مجھے بتائیے یہ اللہ کون ہے جو بار بار آپ بول رہے ہیں؟ میرے بیٹے، صرف اور صرف ایک خدا ہے جس نے یہ تمام کائنات، اس میں موجود ہر چیز بنائی ہے۔ وہ تمام دنیاوی طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے، چاہے وہ نورسس ہو یا سناٹس۔ وہ تمام قوتوں کا مالک ہے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں میں آپ کی بات سمجھ سکا ہوں یا نہیں۔ سناٹس اور نورسس مجھے بہت طاقتور لگتے ہیں۔ بیٹا، سچائی جاننے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کر دو، پھر اللہ کی ذات تمہیں بھی محسوس ہوگی۔ اپنے دماغ کو کھلا رکھو، ضرور تمہیں بھی اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ مجھے سچائی کیسے پتہ چلے گی؟
अगर तुम अल्लाह से मदद चाहोगे तो वो जरूर तुम्हारी रहनुमाई करेगा। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। शुक्र है इस लड़के में ईमान नजर आता है। ऐ अल्लाह, सच के लिए इसका दिल खोल दे और मुझे ताकत दे कि मैं इसको सिखा सकूं जो मैं जानता हूं। अल्लाह सिर्फ एक और सिर्फ एक खुदा है, जिसने ये तमाम कायनात और इसमें मौजूद हर चीज बनाई है। वो तमाम दुनियावी ताकतों से ज्यादा ताकतवर है, चाहे वो नॉरसिस और सनाटर से क्यों ना हो। वो तमाम कुव्वतों का मालिक है। ओए ऐसे पकड़ो, ओए ऐसे पकड़ो, ऐसे मत छोड़ो, ओए ओए पकड़ो ऐसे, जो भी रखा में निकाल दे इसको। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो। ये मेरी जमा पूंजी है, ये ना लो। अरे तुम ये आवाज सुनते हो? हाँ, मुझे भी ये आवाज पैसों की आ रही। मुझे पैसों की आवाज से बड़ा प्यार है। कैसी आवाज आ रही है? और से सुनो, की टॉपों की आवाज आ रही है। चलो ए, जल्दी से चलो, भाग। अरे ये तो फौजी हैं। भागो। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इन चोरों ने मेरा तमाम पैसा ले लिया है। मेरी मदद करो, मुझ पे रहम खाओ, इस बूढ़े पर रहम खाओ। क्या हुआ जनाब? चोरों ने मेरा पैसा चुरा लिया। बेटा मैं क्या कर सकता अल्लाह हूँ। के नाम पे, अल्लाह के फौजी नाम भी पे, वहां अल्लाह थे के लेकिन नाम पे। उन्होंने भी नहीं सुना। मैं बहुत थक गया हूँ, जिंदगी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब कोई महफूज नहीं। बादशाह नॉरसिस कुछ करता भी नहीं, वो हमारे तहफ्फुज़ के लिए कुछ करता ही नहीं। मुझे अंदाजा है कि आपकी हालत इस वक्त बेहतर नहीं, लेकिन बादशाह को इल्जाम देने से क्या ये शहर ऐसा हो सकता है? बेटा वो आसमान से उतरा है, वो बिल्कुल पागल है। पागलों की सी हरकतें करता है, इंसानों की बजाय ऊंटों पर खर्च करता है। अरे ये देखें, यह आपके कान के पीछे क्या है? सोने का सिक्का। हाँ, ये सिक्का है, ये वही सिक्का है जो मेरे बैग में था। क्या ये असली है? ये बिल्कुल असली है। देखें, इस पर बादशाह की तस्वीर है। हाँ तुम सही कहते हो, बादशाह की तस्वीर है सिक्के पर। बादशाह की उम्र लंबी हो, मुझे बादशाह से मोहब्बत है। बेचारा। कितना सारा था, कितना अच्छा खाना लग रहा है। खाओ इसे, खाओ। क्या हो रहा है ये? नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। आओ। आज नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। हमें भूख लगी थी, हमें भूख लगी थी, इस वजह से हमने खाया। हमें भूख लगी थी, हमें माफ कर दो। शहर की यह सूरत हाल देखकर मैं चकरा गया था। वो इन कहानियों की तरह नहीं थी जैसा कि मेरे गांव के लोगों ने बताई थी, लेकिन मुझे अभी असल हकीकत से दो चार होना था। ए, तुम कौन हो? बाहर निकलो यहाँ से। मैं यहाँ जादूगर सरनाटस के हुक्म पर आया हूँ। ये देखें। अरे शाही मोहर। दरवाजा खोलो, ये अंदर जा सकता है।
क्या तुम्हें लगता है लड़का वाकई जादूगरी जानता है؟ हाँ, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो ये तुम्हें बंदर में बदल देगा, समझे? जनाब, आप इस रास्ते पे चलते जाइए, जादूगर सन्नाटे साहब की राह देख रहे हैं। शुक्रिया जनाब। मैंने अपने आप को एक लंबी और अंधेरी सी गली में पाया। अजीब अजीब मुजस्मे दोनों तरफ से मुझे घूर रहे थे। मैं अपने एहसासात बयान नहीं कर सकता था। मैं इस शख्स से मिलने वाला था जिससे मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा डर लगता है। वहाँ के मनाज़िर और आवाज़ों ने मुझे हिला कर रख दिया और अचानक उधर ही रुको, अगर करीब आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चीते, इधर आओ। दरिंदे, तुम्हें जरूर मालूम होना चाहिए कि दोस्त और दुश्मन में क्या फर्क होता है। समझे कुछ? आइंदा के लिए खबरदार रहना। तुम हो उबैद? जी हाँ, मैं हूँ उबैद। मेरे साथ आओ, तुम्हें दिखाता हूं कि जादूगरी चीज क्या है। रात जब लोग अपने खौफ के साथ अकेले होते हैं, ये अरूज होता है अंधेरी ताकतों का। जब लोग कंबल में कपकपाते हुए अपने बंद कमरों में होते हैं और डर रहे होते हैं, ये वक्त जादूगरों की इजारादारी। जान, खुदा, इंसान, शैतान खुदा और आग की अजीम ताकतों के आगे झुक जाओ जो मार देने की सलाहियत है। वक्त तुम्हारा भी हो और तुम भी एक जादूगर हो। अंधेरी ताकतों पर काबू पाओगे, लोगों के दिमाग पर काबू पाने के लिए शर की ताकत को इस्तेमाल करोगे और खेलोगे उनके खौफ से और वहम से। उबैद, अब तुम एक नई दुनिया में दाखिल हो रहे हो, एक नई जिंदगी में, जहां तुम अपने पक्के बड़े बड़े जादूगरों से मिलोगे। गोरोडेड और क्यूटोर, जिनके नाम उनकी अजीम ताकत की वजह से खौफ की अलामत है, इन जाहिल लोगों की नजर में अब ये एहसास बैठ चुका है। लोग तुमसे डरेंगे और तुम्हारी इबादत करेंगे और तुम्हारी ताकत से खौफ खाएंगे। उबैद, उबैद, क्या तुम इस सब को महसूस कर सकते हो? जी जी, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। जी उबैद, मैं देख रहा हूँ तुम मेरे काम को आगे बढ़ाओगे और दुनिया के अजीम जादूगर बनोगे। मेरे साथ रहो और सीखने की कोशिश करो। जी जी जी, ठीक है जनाब। और याद रखो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। जीते, तुम भी मेरे साथ आओ। उबैद, आओ, अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। तुम उन बहुत कम लोगों में से हो जिन्होंने मेरी ये खुफिया चीजें देखी हैं। कोई जिंदा नहीं रहता। बादशाह नॉरेसस भी नहीं जानता है कि इधर क्या होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उबैद, राजदारी हमारी असल ताकत है। हर कोई
कोई यहाँ तक कि बादशाह नौरसिस भी हमसे डरता है और हमारी ताकत को सबसे बड़ा मानता है। यही वजह है कि ऐसे तमाम लोग रहनुमाई के लिए जादूगरों की तरफ रुजू करते हैं। अब देखो और सीखो हम कैसे काबू पाते हैं अंधेरी ताकतों को। अजली की ताकत के जरिए मैं चांद और तमाम ताकतों से कहता हूं कि वो शर के सामने झुक जाएं। मैं अंधेरे की ताकत से कहता हूं कि मैं आपके इंतकाम से काबू पाता हूं मौत के खौफ पर। इस बैल को, इस शेर को, बकरे को, इन सब को खौफ में तब्दील किया जाता है। सनाटस को ये सब करते देखकर मैं भी डर गया और इस काम से बाज आने का इरादा किया। इसके खतरनाक तजर्बे से मुझ पे अजीब सी हालत तारी हो गई थी, मगर उसकी गैर मौजूदगी में इसकी बातों के बारे में सोचता रहा कि क्या एक दिन मेरे पास भी ताकत होगी लोगों को काबू करने की, उनके दिमागों और जिंदगियों पर छाने की। ओह, मुझे क्या हो रहा है? सनाटस के इस तजर्बे और उसकी जादूगरी ने मुझे सच्चाई से दूर कर दिया। ये एक हिस्सा है हम इस्तेमाल करते हैं। जादूगरी की ताकत से हम इनके कमजोर ज़हनों पर काबू पाते हैं। ये एक हिस्सा जो हम इस्तेमाल करते हैं जादूगरी की ताकत से हम इनके कमजोर ज़हनों पर काबू पाते हैं। नहीं नहीं, ये सीखना मेरे लिए मुश्किल होगा। नहीं उबैद, मैं तुम में ताकत देखता हूँ। तुम मेरी जादूगरी के जरिए से बड़ी बड़ी सल्तनतों को काबू में कर सकते हो। तुम जादूगरी में मेरे वारिस बनोगे और लोग तुम्हें इज्जत देंगे। क्या वाकई? मुझे बताइए, मैं ये ताकत कैसे हासिल कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए ये बहुत आसान होगा। मुझे तुम्हारी सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम्हारी मुकम्मल रजामंदी। मुझसे तुम मेरे अलावा और किसी की बात नहीं मानोगे और ना ही किसी की हिदायत पर चलोगे। तुम मेरे रहोगे, सिर्फ मेरे, और हम मिलकर यहाँ पर हुकूमत करेंगे। घर की तरफ जाते हुए मैं पिछली रात के वाकयात के बारे में सोच रहा था। मैं बहुत परेशान था, मेरा दिमाग अब्र आलूद हो गया था। सनाटस की मौजूदगी में मैं मदहोश सा हो गया कि जो ताकत और हुक्मरानी के उसने वादे किए थे, मैं उन असरात को रोक नहीं पा रहा था। कोई चीज़ कम सी लग रही थी। मेरा दिमाग तो जैसे था ही नहीं। मैं उस मेहरबान दरवेश को देखना चाहता था जिससे मैं पिछले दिनों मिला था। खुदा की रहमतें हों तुम पर उबैद बेटा। लेकिन जनाब, आप मुझे कैसे जानते हैं? क्योंकि बेटा इस जगह के बारे में तुम्हारे सिवा किसी को इल्म नहीं।
کل رات سناٹس کے ساتھ میرا پہلا سبق تھا. اس نے مجھ سے مزید طاقت اور جادو سکھانے کا وعدہ کیا ہے جس کا میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے ڈریں گے اور میری عبادت کریں گے. لیکن جناب کیا یہ ممکن ہے؟ میرے بیٹے صرف سچائی کی پیروی کرو، ان خواہشات کی نہیں جو یہ سب دیکھ کر پیدا ہوتی ہیں. لیکن کیا طاقت ایسی چیز ہے جس کی خواہش کی جائے؟ سناٹس یہی چاہتا ہے کہ تم ایسا کرو، لیکن اس کی طاقت بے معنی ہے. دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، کوئی بات نہیں بھلا وہ کتنا ہی طاقتور ہو. سناٹس کی طاقت بہت دیکھی ہے لیکن وہ بہت جلد تباہ ہو جائیں گی. صرف اللہ کی طاقت ہمیشہ رہے گی. ہمیشہ؟ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس نے کائنات میں ہر چیز بنائی ہے اور ہمیں سچ دکھانے کے لیے اپنے بزرگوں پیغمبروں کو بھیجا ہے. بیٹا ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں کسی پیغمبر کا نام معلوم ہے؟ میں نے صرف کوروڈیڈ اور کیٹور کا نام سنا ہے. یہ کون ہیں؟ یہ دنیا کے عظیم جادوگر ہیں. بیٹا اپنے آس پاس ایک نظر مارو. کیا جادوگر یہ دنیا بنا سکتے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے؟ یہ پہاڑ، زمین، سورج، دریا، سب کتنی مہارت اور سب ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. لیکن ہمارے گاؤں میں بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم بارش کے خدا سے دعا کرو گے تو وہ بارش برسائے گا، دریا کی عبادت کرو گے تو سیلاب نہیں آئے گا. یہ بھی بتایا گیا کہ بادشاہ نورسس خدا کی اولاد ہے، اس کی عبادت کریں. نورسس صرف ایک انسان ہے میری اور تمہاری طرح. وہ اور سناٹرس دونوں کی طاقت اللہ کی ذات کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ بادشاہ اور جادوگر جن کو ہم خدا مانتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کو رد کر دوں؟ پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور ایک دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا. اللہ کے پیغمبر اور اس کی کتاب تمہیں کہتی ہے کہ ہم سچ کا ساتھ دیں اور ایسے تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کریں. اللہ ایسے ایمان والوں کو جنت کے عظیم باغات بھی عطا کریں گے. آپ نے جو کچھ مجھے آج بتایا مجھے اچھا لگا، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتا کیونکہ میرا خاندان مجھ سے یہ امید رکھتا ہے کہ میں اپنے سبق سناٹس کے ساتھ جاری رکھوں. بیت اپنے خالق کو رد کرتے ہوئے تم اپنے خاندان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. میں تمہیں پھر یاد دلاتا ہوں کہ اپنے ضمیر کی پیروی کرو اور اللہ کی رہنمائی چاہو. وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کام کیوں شروع نہیں ہوا؟ کھانے کا وقفہ ختم ہو چکا ہے. کام کیوں نہیں کر رہے؟ سیدھی طرح سے کام کرو ورنہ مجھے کیوں؟ میرے ساتھ کیوں؟ یہ لوگ میرے باپ کے ساتھ تو بہت اچھے تھے. نہیں رکو، میں تم لوگوں کو ایک موقع اور دیتا ہوں. جناب آپ اپنے فیصلے پر ایک مرتبہ پھر سوچ لیں. اگر آپ ان تمام مزدوروں کو مار دیں گے تو آپ محل کی تعمیر کیسے جاری رکھ سکیں گے؟ شاید ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے سرناٹس کو ان سے کوئی ڈیل کرنی چاہیے. اس کے پاس کئی طریقے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے. وہ دیکھو سناٹس آ رہا ہے. اوہ سرناٹس، ارے واہ، تمہاری ہی ضرورت تھی. بادشاہ چاہتے ہیں کہ ان سب کو مروا دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس ان کو سیدھا کرنے کا کوئی طریقہ ہو.
कोई मसला नहीं। तुमने अपने बादशाह की नाफरमानी की है और अब वो गुस्से में है। तुम्हें इसकी सजा दी जानी चाहिए। सीधी जाए, जब शीशी रोशनी के सामने आए तो वो सांप बन जाए। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? रस्सियों को सांप 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 अब तुम्हें अपने बादशाह की इताअत करनी होगी। नौरसिस खुदा की अजीम औलाद, अपने घुटनों के बल सजदा करो, अपना सर जमीन पर लगाओ और औंधे मुंह जमीन पर लेटो, तो शायद ये तुम्हें माफ कर दे। मेरे पास 5000 से ज्यादा नुस्खे हैं, जिसमें हमारे आबाओ अजदाद के वक्त के अजीम जादूगरों के मंत्र मौजूद हैं। तुम्हें अपने आप को इन सब से वाकिफ करना है, फिर तुम्हें तुम्हारे सवालात के जवाबात भी मिलेंगे और साथ ही एक ना रुकने वाली ताकत भी मिलेगी। महीनों तक मैंने वो नुस्खे पढ़े। मैंने काफ़ी सवालों के जवाबों को ढूंढना चाहा जो मेरे दिमाग में उभर रहे थे। वक्त के गुजरने के साथ इन चीज़ों पर मेरा एतमाद कम से कम होता गया, जो दरअसल मुझे चाहिए था। अब मैं अक्सर उन बड़े मियाँ के बारे में सोचता था और उनकी बातों के बारे में सोचता। आपके पास रुकने से मुझे देर हो जाती है और सनाटिस मुझे बुरी तरह से सजा देता है। मैं क्या कर सकता हूँ? देखो बेटा, उन जालिमों को अगर तुमने मेरा नाम बताया तो वो सब कुछ तबाह व बर्बाद कर देंगे, लेकिन हमें झूठ भी नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलना गुनाह है। सोचो, कोई दरमियान की राह निकालो। क्यों, ठीक है ना बेटा? मुझे बहुत मज़ा आया जब मैंने बादशाह के मुशीरों से ये सुना कि नौरसिस को उसके बाप आबिद की तरह क्यों पसंद नहीं किया जाता। मुझे लगता है आपको सिर्फ एक खुदा पर नजर मरकोज करनी चाहिए। आपको एक मकबरा बनाना चाहिए जो कि कच्ची मिट्टी का बना और उसकी लंबाई 10 आदमियों के बराबर होनी चाहिए, और आप और आपकी राय को 1 साल के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। ये आसान नहीं होगा। चलो हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर काश्तकारी का खुदा नाराज हो गया तो अवाम आपकी इबादत तब करेगी जब आप सिर्फ फली और सूखी रोटी खाएंगे। सिर्फ फली और रोटी बस? मैंने देखा है कि जंगली ऊँटों पर बैठकर शैतानी रूहें महल के बाहर घेरा डाल रही हैं। आपको अपनी गर्दन में इन सब की जगह ये पहन लेना चाहिए ताकि खतरा खत्म हो जाए और आप पर कभी हमला ना हो। आपको महल छोड़ देना चाहिए और महल के अंदर मत रहिए। भूत कब्जा कर रहे हैं, मैं उन्हें हर जगह देखता हूँ। आप सिर्फ बाहर महफूज रहेंगे। भूत भूत, छोटे हरे भूत जिनके नाखून तेज हैं और शेर जैसे दांत हैं और उनकी आंखें आग जैसी हैं और वो हर जगह मौजूद नजर आते हैं। तख्त के नीचे, दीवारों पर, आपकी दाढ़ी में। वो दुश्मन बादशाहों की तरफ से भेजे गए हैं। वो आ रहे हैं, भागे भागे। अरे अरे अरे, कहाँ अब मेरी असल तहफ़्फ़ुज़ और असल ताकत सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। किसी और की रहनुमाई मत चाहो सिवाय अल्लाह के। हम सब बादशाह नौरसिस के लिए हैं, खुदा का बेटा, खुदा की औलाद। उसकी सल्तनत लंबी हो, उसकी उम्र लंबी हो। तारीफ़ बादशाह नौरसिस के लिए हैं, खुदा की औलाद। हम सब बादशाह नौरसिस के लिए हैं, खुदा का बेटा, खुदा की औलाद। उसकी सल्तनत लंबी हो, उसकी उम्र लंबी हो। तारीफ़ बादशाह नौरसिस के लिए हैं, खुदा की औलाद। हम सब बादशाह नौरसिस के लिए हैं, खुदा का बेटा, खुदा की औलाद। तमाम तारीफ़ें बादशाह नौरसिस के लिए है। इनके तख्त-ओ-ताज की 20वीं सालगिरह के दिन हम इस मुजस्मे की इबादत करेंगे और यह मुजस्मा हमारे शहर की हिफाजत करेगा, और जो कोई इसकी बेहुरमती करते हुए पकड़ा गया उसे खत्म कर दिया जाएगा। बादशाह की गैर मौजूदगी में हम इस मुजस्मे की इबादत करेंगे जैसा कि हम बादशाह की करते हैं। तुम इस बादशाह नौरसिस को क्यों सजदा करते हो?
تمہیں پتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، تم اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہو. لیکن جلد ہی یہ میں اور تم ہوں گے جن کی یہ لوگ دن رات عبادت کیا کریں گے. 1 مہینہ اور گزرا. میں نے اپنے آپ کو اور زیادہ سوچتا ہوا پایا اس خوبصورت سی دھرتی کے بارے میں جو میرے ارد گرد ہے. اور قدرت کا یہ سارا ساز. کون سا جادوگر ہوگا اس قابل کہ ایسی کوئی چیز بنا سکے؟ جیسا کہ یہ گلاب. تمہارا خالق کون ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً ہر چیز سے مختلف ہوگا. نورسس کی طاقت سناٹس کی جادوگری اس جیسا ایک پھول بھی نہیں بنا سکتی. اللہ تمہاری حفاظت کرے میرے بیٹے. تم سچائی کو جان رہے ہو. میرے خیال میں تمہاری بہت اچھی تقدیر ہوگی. آج تم واقعی آگے نکل گئے. تم ایک بہت عظیم جادوگر ہوگے. میں اور تم کچھ بھی حاصل کر سکیں گے. دیکھیے ارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ تو کوئی بلا ہے. یہاں یہ کیسے آ گئی؟ یہ تو ہاتھی سے بھی بہت بڑی ہے. ارے بھائی مسئلہ کیا ہے؟ اس کو ایک طرف سے دھکا دو. میں یہ کر چکا ہوں لیکن اس نے مجھے مارا ہے. ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن اس سے کچھ نہیں ہو رہا. اچھا یہ کیا تم نے اس کو پتھر مارا ہے یا اس کو کچھ کھلایا ہے؟ دیکھو بھائی میں بیوقوف نہیں ہوں, سب کچھ کر لیا لیکن درندہ لات مارتا ہے. کسی جادوگر کی ضرورت ہے, جادوگر کی. اس سے کھیلنا بند کرو اور کوئی جا کے محل سے سناٹس کو بلا لے. تم لوگ کیوں رک گئے یہاں پر؟ اگر تم نہیں جاؤ گے تو ارے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک بلا نے راستہ بند کر دیا ہے. ارے تم سناٹس کے شاگرد ہو نا؟ ہاں یہ تو وہی ہے نا. ارے پہلے راستہ صاف تو کرو, ہماری مدد کرو, پھر بعد میں کچھ بھی کر لینا. اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی پریشانی کا حل دیکھ سکتا ہوں. میں نے اس کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ مجھے کس کی پیروی کرنی چاہیے. مجھے دیکھنا تھا کہ کون سی طاقت جیتے گی, جادوگری یا ایمان کی. کرو کرو شاباش کرو کرو کرو. ارے یہ کام تم کر سکتے ہو. ارے تم نے سیکھا سناٹس سے. ہمیں اس مصیبت سے پہلا منتر تھا. ارے ہمیں مصیبت سے نکالو یار, یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ بدی کی طاقت کے ذریعے درندے کو پار کر لو. درندہ سانپوں سے ڈرے گا. ڈراؤ درندے کو, یہ تباہ کر دے گا. ابھی وہ دیکھو وہ بچہ کیا کر رہا ہے, وہ شام کی طرف جا رہا ہے, وہ اسے مار ڈالیں گے. بے وقوف بچہ, تمہاری امی نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی. اس عظیم خدا کے نام سے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے, جس کے بارے میں وہ بزرگ بتاتے ہیں, سب سے زیادہ طاقت والے اللہ. اے اللہ, راستے سے اس درندے کو ہٹا دیجئے تاکہ لوگوں کی مشکل آسان ہو اور آپ کا نام بلند ہو. یہ بلا آپ کی طاقت سے ماری جائے, ہماری کوئی طاقت نہیں. اب یہ کیا کوشش کر رہا ہے؟ کیا جادو ہے؟ نہیں, میں نے جادو نہیں کیا, بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے. میں نے اللہ سے کہا کہ اپنی طاقت دکھائے جو جادوگری سے زیادہ طاقتور ہے. تمام جادوگری مل کر بھی اس دنیا میں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ارے کون سا خدا؟ ازلی؟
ایک اور صرف ایک خدا جس نے یہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا. اس کے کوئی والدین نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں. تمام مخلوق بڑی یا چھوٹی اسی کی مرضی سے جیتی اور مرتی ہے، اور اس نے ہمیں بنایا ہے عبادت کرنے کے لیے اور اس کا حکم ماننے کے لیے. اب اللہ نے مجھے سمجھ دے دی ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں. لیکن بادشاہ نورسس ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں خدا کی طرح. نورسس صرف ایک انسان ہے آپ کی طرح. اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اس کو اجازت دیتا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک امتحان ہے. حضور میں ایک خبر کے ساتھ آیا ہوں. اٹھو اور بولو. بادشاہ سلامت، یہ افواہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے اور سب کے علم میں بھی آ چکی ہے. تمہارا مطلب میرا عظیم محل؟ میرے لوگ یقیناً بہت بے چینی سے اس کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں سر، یہ سرناٹس کے شاگرد عبید کی خبر ہے. اس نے درندے کو مار دیا ہے. درندہ؟ کیسا درندہ؟ ایک نامعلوم درندہ تھا جو کہ راستہ روکے ہوئے تھا اور لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رہا تھا. عبید نے اسے مار دیا. کیا یہ ایک جادوگر کا کام نہیں؟ لیکن جناب اس نے کوئی جادوگری استعمال نہیں کی. تو اس نے کیسے مارا؟ کیا وہ کوئی خاص ترکیب استعمال کرتا ہے؟ جناب اس نے کوئی ترکیب استعمال نہیں کی، بلکہ بہت عجیب سا لفظ تھا. اس نے مدد کے لیے اللہ کو پکارا. اللہ؟ اور کیا کہا اس نے؟ بتاؤ کیا کہا؟ اس نے کہا صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، آپ کی نہیں. بس فوراً سرناٹس کو میرے پاس لاؤ. حضور علی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ کا نام دوبارہ لیا گیا، اس دفعہ تمہارے شاگرد نے؟ میرے شاگرد نے؟ جادوگر سرناٹس، آج صبح ایک عجیب درندے نے پہاڑ کا راستہ روک لیا تھا. اس نے ان پر حملہ کیا جو لوگ راستے میں تھے. عبید نے اللہ سے مدد مانگ کر اس کو مار گرایا. وہ بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو خام خیالی اور ترکیب سے قابو کرتے ہیں. جادوگروں کی اصل طاقت نہیں ہوتی اور کسی کو آپ سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بادشاہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے. اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے، سمجھے؟ ناکورن سے تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ مار ڈالو اسے، اس سے پہلے کہ وہ بغاوت شروع کرے. نہیں، پہلے اسے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. اگر اسے ابھی قتل کر دیں گے تو لوگ سمجھیں گے وہ سچا تھا. اس کے برعکس اگر ہم انتظار کریں کہ اسے یہ سب کچھ کون سکھا رہا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ اس بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. میں نے اپنی زندگی کے 20 سال اپنی سلطنت کی بنیادوں کو بنانے اور لوگوں کو قائل کرنے میں لگا دیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. میرے والد اور وہ لوگ جو اسی اللہ کی عبادت کرتے تھے اب سب بھلا دیے گئے. اب میں دوبارہ اس کی اجازت نہیں دوں گا، نہیں دوں گا. میں اس کی تحقیقات کروں گا. جو کچھ ہوا میں دیکھوں گا کہ واقعی میرے شاگرد عبید نے ایسا کیا یا نہیں. تم نے اب حقیقت پا لی ہے اور ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے ہو. لوگوں سے کہو وہ جھوٹے خداؤں کا انکار کریں. ٹھیک ہے. یہ چیز بادشاہ کو غصہ دلا چکی ہے اور اب وہ تمہیں تباہ کرنے کے لیے سب کچھ کرے گا. میں صرف اللہ سے ڈروں گا سوائے اس کے کہ جو میرے لیے ارادہ رکھتا ہے. لعنت ہے اس لڑکے پر، وہ آج نہیں آیا. انہوں نے جو کہا وہ صحیح تھا. میں نے اس کو طاقت دی لیکن اس نے میری ذلت اور بے عزتی کی. اب میں اسے تباہ کر دوں گا. اب میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا.
अंजीक, तुम? मैंने तुम्हारे वाक़े के बारे में सुना जो तुमने दरिंदे के साथ किया। तुमने कहा कि सोनाटस और नोरेसिस कोई असली ताकत नहीं है, इसने उन्हें बहुत गुस्सा दिलाया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ ये सच है। सोनाटस ने मुझे अंधा किया है और कहता है कि वो मेरी बिनाई ठीक कर देगा। उसकी जादूगरी सिर्फ नजर का धोखा है। उबैद, तुम कभी नहीं आना महल में। अगर तुम वहाँ नजर आओगे वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें इस उम्मीद से भेजते हैं कि तुम कुछ कमा कर लाओ, इसलिए जब तक तुम्हें कोई और काम नहीं मिलता तुम ये रख लो, शायद ये तुम्हारी कोई मदद करें। लेकिन ये तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? ये तुम्हारे हैं, बस तुम मेरी बीनाई ठीक कर दो। नामुमकिन, मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं किसी को ठीक कर सकूं, सिर्फ अल्लाह ठीक करता है। अगर तुम्हारा अल्लाह पर यकीन है तो उससे दुआ करो, वो तुम्हें ठीक कर देगा। वो मुझे कैसे ठीक कर सकता है? उसने हर चीज तख्लीक की है और वो हर चीज कर सकता है। अगर तुम्हारा उस पर ईमान है, सच्चे दिल से दुआ करो, वो तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा। वो कहता है सिर्फ मुझसे मांगो। आप सिर्फ एक खुदा हैं, सिर्फ एक जो सबसे ताकतवर हैं। तमाम तारीफें आपके लिए हैं। मैं सवाल करता हूँ, मेरी बीनाई ठीक कर दीजिए। ऐ अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। आपने मुझे मेरी नज़र वापस कर दी। अब मैं समझा हूँ कि कितने अरसे तक नोरेसिस की मदद करता रहा, लोगों को दबाने के लिए। ऐ अल्लाह, मेरी मदद कीजिए सच का साथ देने के लिए। लगता है आज अंधी हमारी मीटिंग में देर से आएगा। तुम्हें पता है ना कि वो अंधा है। हो सकता है वो ठीक हो गया हो। वक्त गुजर गया नोरेसिस, अब मैं वाकई देख सकता हूँ। अंजीक, तुम दोबारा देख सकते हो। किसने तुम्हारी नजरें वापस कर दी? अल्लाह ने, जो कि मेरा खुदा है और तुम्हारा भी। अल्लाह! ये पागल हो गया है। पागल हो गया है। मैं पागल नहीं हूँ, अब मुझे पहले से ज्यादा समझ है। तुमने उबैद को देखा था? हाँ, और उसने मुझे सच्चाई की तरफ रास्ता दिखाया। अंजीक बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? और तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैं यहाँ आया हूँ अपनी जिम्मेदारी निभाने, बादशाह के मुशीर के तौर पर। ये मेरी नसीहत है तुम लोगों को कि लड़के को वैसा ही रहने दो और उसे नुकसान नहीं पहुँचाओ। वो लोगों को जहालत और गुमराही से आज़ाद कराना चाहता है। वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। मैं बादशाह हूँ, यहाँ मेरी ही पैरवी की जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कहा माना जाए तो अपनी झूठी खुदाई खत्म कर दो। खामोश हो जाओ वरना हम तुम्हें अजियत देंगे जब तक तुम इस ईमान से इनकार न कर दो। मैं सिर्फ अल्लाह की नाराजगी से डरता हूँ। तुम लोगों की कोई ताकत नहीं। इसने मुझे क्यों धोखा दिया? क्यों ऐसा किया? क्या ये मेरा इख्तिताम है? क्या करूं? मत परेशान हो, वो अभी एक बच्चा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तुम एक बादशाह हो, सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं इस किस्से को खत्म करना चाहता हूँ। लड़के को मेरे सामने हाजिर करो। अब मैं हर मसले से निजात चाहता हूँ, समझे या नहीं समझे? हाँ ठीक है। बादशाह ने अपने मुशीर का कहना नहीं माना और उसका दिल और सख्त होता गया। मैं जितना लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा था, वो मेरी तलाश में और पागल हुआ जा रहा था, उस ईमान की रोशनी को ख़त्म करने के लिए जो फैलना शुरू हो गई थी।
हैरत अंगेज नहीं है कि लड़का बीमारों को ठीक करता है। याद रखो, ये सिर्फ अल्लाह की ताकत है कि मैं तुम में से कई को ठीक कर चुका हूँ। अल्लाह हर चीज देखता है, वो हर जगह है और एक दिन हमारे हर अमल का हिसाब होगा। इसलिए उसने हमारी हिदायत के लिए पैगंबर भेजे और किताबें, ताकि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, जो कि सिर्फ इस दुनिया की खत्म होने वाली जिंदगी से मोहब्बत करते हैं और अपनी मौत और उसके बाद की जिंदगी को भूल जाते हैं, लोगों पर जुल्म और नाइंसाफी करते हैं, तो फिर उनके लिए सजा के तौर पर दोज़ख की आग होगी। लेकिन अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, साथ ही नेक अमल करते हैं, तो अल्लाह ने हमसे जन्नत का वादा किया है, जन्नत जहां हम अपने अच्छे अमाल की वजह से हमेशा रहेंगे। तमाम घर खाली कर दो, हर जगह देखो, बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, बताओ वो लड़का कहाँ है? कहाँ है वो लड़का? किधर छुपा है इस लड़के को? बताओ बताओ। मैं नहीं बताऊंगा ये लड़का कहाँ है। लड़का? कौन लड़का? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। कुछ दिन बाद बादशाह ने अपने एजाज में एक दावत मुनक्किद की, जिसमें उसके मेहमान नशे, मौसीकी और दुनियावी चाहतों में डूब गए। उधर महल के बाहर अल्लाह का नाम ताकत पकड़ रहा था और उसकी रफ्तार बढ़ रही थी और सच के लिए लोगों के दिमाग दिल खुल रहे थे। एक अल्लाह ही हम सब का खालिक है, वो बहुत मेहरबान और रहमदिल है, उसी की इबादत होनी चाहिए। अल्लाह ने सच्चे ईमान वालों से वादा किया है बड़े इनामात का, ख्वाह मर्द हो या औरत, दोनों से, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस कायनात पर, इस दुनिया की खूबसूरती पर नजर डालो और सोचो कि उसे कोई बेजान पत्थर या कोई ऐसा इंसान कभी बना सकता है? वो चांद सूरज जो खुद डूब जाते हो, क्या किसी की मदद कर सकते हैं? लेकिन उनको बनाने वाला अजीम रब जो हम सबको पालता है, वो जरूर हमारी मदद कर सकता है, अगर हम सिर्फ उसी के आगे सर झुकाएं, उसी से मांगे अपनी हर जरूरत। रहे वो लोग जिनको अगर कोई बताता है कि अल्लाह से डरो, उसकी इबादत करो, तो वो घुमंडी हो जाते हैं और इनकार कर देते हैं सच्चाई का। वो सब शैतान के साथी हैं, इसलिए अल्लाह को गुरूर बिल्कुल पसंद नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें उन जैसा ना बनाए और हमें शर से बचाए। बादशाह खुदा नहीं होता, अपने मुखलिस बंदों को जो तौबा करते हैं और पलटते हैं उसकी तरफ। अरे कोई आ रहा है, हमें ढूंढने के लिए छुप जाइए। वो देखिए सामने वो लोग आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, वक्त आएगा तो नोटिस का सामना भी करूंगा, आंखों में आंखें डालकर। ए लड़के, अब तुम ज़ेरे हिरासत हो। जरा ऊंचा बोलिए। तुम ऊंचा बोलो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। अब फरार होने की कोशिश मत करना। जब ये तुम्हारे करीब आए ना, तो हम इनको यही खत्म कर देंगे। ठहरो, परेशान मत हो, मैं वापस आऊंगा, खुदा ने चाहा तो। चलो चलते हैं। अल्लाह इसको बचाएगा। आखिरकार आ गए। तुम सजदा करोगे मेरे सामने? मैं नहीं सजदा करूंगा, मैं सिर्फ अल्लाह के सामने करूंगा। तुम सजदा करोगे? जनाब, आपसे कोई मिलने आया है। लानत हो तुम पर, तुमने ये सिला दिया हमारे एतमाद का। छोड़ दो इसको, ये हमारा छोटा उस्ताद देखो क्या कहता है। मैं कहता हूँ तुम जो कुछ कहते हो वो सब बकवास है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बहुत नाशुक
मैं कहता हूँ तुम नाशुक्रगुजार हो अल्लाह के। क्या तुम मेरी तरफ इशारा कर रहे हो? मेरी ताकत से इनकार कर रहे हो? क्या तुम अपने खुदा की नेमतों को झुटलाते हो? मैं खुदा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का मैं खुदा हूँ। बहुत से बादशाहों ने तुम्हारी तरह ही कहा था, लेकिन अल्लाह ने सबको तबाह कर दिया। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो 1 मिनट भी देर नहीं कर पाओगे। हाँ? तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? तुम क्या समझते हो अपने आप को? हुजूर, ये पागल हो गया है। ये सिर्फ अल्फाज दोहराता है जिस पर लोग इसकी पैरवी करते हैं। हम इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं। अगर ये बाज नहीं आएगा तो हम इसे नीचे फेंक देंगे। ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, ले जाओ इसे। ये लड़का सब कुछ कैसे जान सकता है? क्या इसका ताल्लुक उन्हीं किताबों से था जो मेरे वालिद के दौर में थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो तमाम किताबें मैंने तबाह कर दी। हुजूर अली, इसकी मालूमात का कोई दूसरा जरिया है? वो क्या हो सकता है? ये बातें उसे कहाँ से पता चली? क्या ये सब वही कहता है जो इससे पहले वो काजी कहा करता था? काजी हो सकता है, मगर क्या वो अभी तक जिंदा है? उसने तो 20 साल पहले शहर छोड़ दिया था। वो तो अब तक मर भी गया होगा। ये सच है कि उसने शहर छोड़ दिया था। मेरे ख्याल में मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। वो कहाँ छुपा हुआ है? कहाँ होगा वो? तुम ढूंढ सकते हो। वो जरूर ऐसी जगह पर रहता है जो शहर और लड़के के घर के दरमियान है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? जो अल्लाह के बारे में ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये अल्लाह के बारे में इस लड़के को कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग? कहाँ जा रहे हैं? ये तो वही नजर आ रहा है मुझे। ये ऑफिसर्स कहाँ ले जा रहे हैं इसको? फिक्र मत करो, ये ऊंची जगह पर जा रहा है। हमें ये कहाँ जा रहा है? हमें इस लड़के को बचाना चाहिए अल्लाह की खुशनुदी के लिए। ठीक है, इसको बचाना चाहिए। अरे आप! उबैद, उन लोगों ने आपको कैसे पकड़ा? उन्होंने हर जगह ढूंढा कि तुम्हें ये ईमान की रोशनी कहाँ से मिली है, और बिलाखिर बादशाह इंतजार कर रहा है, जल्दी चलो। जालिमो, इस बुजुर्ग को छोड़ दो। सब्र करो उबैद, सब्र करो। मैं जल्द आ जाऊंगा वापस, सब्र करो। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। इंशाअल्लाह हम जल्द ही मिलेंगे। वो यहाँ है। अल्लाहु अकबर। लड़के को छोड़ दो वरना, लड़के को छोड़ दो, लड़के को छोड़ दो। अल्लाहु अकबर। लड़के को छोड़ दो वरना क्या? अगर तुम करीब आए तो हम इस लड़के को कत्ल कर देंगे। वापस लौट जाओ, उनके साथ जाऊंगा मैं। मुझे एतमाद है कि अल्लाह ताला मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। इनके पास कोई ताकत नहीं है। फिक्र नहीं करो, मुझे कुछ नहीं होगा सिवाय उसके जो अल्लाह चाहता है। वापस जाओ और शहर में लोगों को मेरे बारे में बता दो। ईमान वाले आज कामयाब होंगे। चलो। चलो वापस चलो। अपने हवास में आ जाओ वरना आज तुम मारे जाओगे। तुमने अपने खालिक को रद्द करते हुए अपने बादशाह का हुक्म माना। तुम कुछ हासिल न कर पाओगे मगर जो अल्लाह की मर्जी हो।
हम सिर्फ बादशाह का हुक्म मानेंगे, अच्छी तरह सोच लो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है अपने आप को बचाने का। मुझे बता दो अगर तुम घर जाना चाहते हो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। ए अल्लाह, मुझे बचाइए इन लोगों से जिस तरह भी आप चाहते हैं। मुझे मत डराओ, चलो। तुम्हारा जादू अब काम करने वाला नहीं। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो और किसी की नहीं। अब भी देर नहीं हुई। खामोश हो जाओ। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी मदद करो इसको नीचे फेंकने में। ए अल्लाह, मुझे बचाइए इन लोगों से जिस तरह भी आप चाहते हैं। अरे मैं फंस गया, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैं फंस गया हूँ। बताओ ये क्या हो रहा है? मैं फंस गया हूँ दलदल में। बचाओ, 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 बचाओ। मैं उसे देख सकता हूँ, देखो वो वहाँ है। देखो अल्लाह ने उसको बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, शुक्र है उसका, शुक्र है अल्लाह का। अब तक तो तुम्हारा शागिर्द मर चुका होगा, अब कोई तुम्हारे अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं रहेगा। जान लो एक अल्लाह ही है जो जिंदगी देता और मौत भी। तुम देखना लोग सच की तरफ लौट मैं सच हूँ। क्या तुम नहीं सोचते कि लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं? तुम्हारे बाप से मोहब्बत की जाती थी। मेरा बाप बेवकूफ और कमजोर था। तुम्हारे बाप के जमाने में हमारी कौम खुशहाल थी, लोग महफूज थे और तहफुज भी था, क्योंकि बादशाह आबिद ने खुदा के असूलों को अपनाया था। मेरे ऊपर कोई खुदा नहीं। ये मत कहो, अब भी देर नहीं हुई, तौबा का दरवाजा खुला है। खामोश। मान जाओ, तुम अपने खालिक को झुटला नहीं सकते, ये सच है। बस एक अल्फाज और नहीं सुनूंगा तुम्हारे खुदा का, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। सिपाहियों, खत्म कर दो इसको। अरे कौन हो तुम? मैं नौरसिस से मिलना चाहता हूँ अभी। चले जाइए, बाकी सब इधर ही रहो। अरे अरे आप अंदर मत जाइए, रुकिए, मत जाइए अंदर। ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे आ गए? बोलो। तुम्हारे सिपाही किसी और चीज में लग गए तो मैं उन्हें पहाड़ पर छोड़ के आ गया। मतलब तुम्हारा? अल्लाह ने बहुत ताकतवर हवा चलाई, मैं अल्लाह के हुक्म से महफूज रहा। ये कैसे हो सकता है? और इस मौजज़े ने बहुत से लोगों को कायल कर लिया है खुदा की ताकत और उसके वजूद पर। और अब तुम्हारी बारी है अल्लाह की जात पे ईमान लाने की। झूठ झूठ, ये जादूगरी है, जादूगरी। लेकिन कोई जादूगर हवा पर हमने इंदीग और दुर्वेश को कत्ल किया, वहां तो ऐसा कुछ नहीं था। तुमने उनका जिस्म जरूर खत्म किया होगा, लेकिन उनकी रूह नहीं, और इंशाअल्लाह मैं उनसे फिर मिलूंगा जन्नत में। अच्छा चलो, फिर हम तुम्हें उनसे मिलवा देते हैं। बादशाह सलामत, अभी हम इसे कत्ल नहीं करेंगे। लोगों के जहनों में इसका मकाम बहुत ऊंचा है, और अगर हम इसे कत्ल करेंगे तो लोग हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हम ये ऐलान करेंगे कि हमने लड़के को शहर से निकाल दिया है, और हमारे सिपाही इसको समंदर में ले जाएंगे, इसके हाथ पैर बांधकर इसे पानी में फेंक देंगे। ठीक है, ठीक है। बड़ा वजनी है ये तो बेचारा लड़का। कैप्टन, अबे हम चलने की तैयारी करनी चाहिए।
चलो भाई, अब रस्सियाँ खोल दो, जहाज का लंगर उठा लो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना ईमान एक चुटकी में बदल देता। क्या तुम उसको झुटला देते हो जिसने तुम्हारी धड़कन बनाई? ज्यादा बात मत करो, मुझे जिंदगी पसंद है। मुझे भी पसंद है, मगर मैं आखिरत की जिंदगी को तरजीह देता हूँ। ठीक है, अपनी छोटी सी जिंदगी एंजॉय करो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुछ लोगों के पल्ले बात नहीं पड़ती। ऐ अल्लाह, मुझे बचा लीजिए इन लोगों से, जिस तरह भी आप चाहते हैं। कैप्टन, एक तूफान आ रहा है, ये लहरें करीब आ रही हैं। ये अच्छा नहीं है। अपनी अपनी जगह पकड़ो। रस्सियाँ काट दो। ऐ अल्लाह, मुझे बचा लीजिए इन लोगों से, जिस तरह भी आप चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ तूफान कितना तेज आ रहा है, लहरें बहुत ऊंची आ रही है। तुम बच नहीं सकोगे, तुम हमारे साथ मरोगे। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। देखो जरा तूफान, ऐसा लगता है अभी शुरू हुआ है। जरा देखो, किनारे पर कोई चीज आ रही है। ये लड़का जिंदा बच गया है। क्या ये वही लड़का है जिसको बादशाह ने निकाला था? मेरे ख्याल से, चलो देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये जिंदा बच गया है तो ईमान वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये वही है। तुम कैसे हो बच्चे? अल्लाह की रहमत है, अल्लाह अजीम है। चलो आओ, हम चलते हैं, हमें बहुत काम करना है। तुम नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। तुम कैसे बच गए? अल्लाह ने तुम्हारे सारे फौजियों को तबाह कर दिया है, जल्द ही तुम भी उन्हीं की तरह तबाह हो जाओगे। दफा हो जाओ। तुम क्या हो, कोई भूत हो? इस दफा मैं तुम्हें खुद कत्ल करूंगा। कौन हो तुम? तुम्हें जादूगरी किसने सिखाई? तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकोगे। तुम देखोगे मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। बारामोरा, 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 मोराबा, मोराबा। अपनी सांसें बचाओ सनाटस, मैं आसानी से देख सकता हूँ तुम्हारी खाम ख्याली। जल्लाद को बुलाओ। अभी इसे खत्म किए देते हैं। बुलाओ, तुम जिसे चाहो बुलाओ। इसको उसके दोस्तों के पास भेज दो। हो सकता है अल्लाह वो निशाना ही खता कर दे जो नेकी की तरफ बढ़े। ये तलवार तुम्हारी जादूगरी से ज्यादा मजबूत है। जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। ये क्या, मैं अपने कंधे हिला नहीं पा रहा। मेरा यकीन करो नॉर्सस, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। तुम कुछ नहीं हो, एक जादूगर हो, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं जादूगर नहीं हूँ, तुम जानते हो। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुम मुझे कैसे मार सकते हो। क्या तुम वाकई मर जाओगे? हाँ, मैं वाकई मर जाऊंगा। वो कैसे? तमाम लोगों को जमा करो और कहो कि अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का खालिक है, और मुझे मार दो। तुम शर्त रख रहे हो? तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा लड़के। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तरीका है। जब लोग इसकी मौत को देखेंगे तो दोबारा इस ईमान से फिर जाएंगे। यही मामले का हल होगा। तुम किस तरह के भूत हो उबैद? किस तरह के भूत हो? जैसे कि मैंने इंतज़ार किया, जो गालिबन मेरा आखिरी दिन होगा इस ज़मीन पर। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरी मौत के तरीके को लोगों के लिए एक बेहतरीन सबूत बना दे जो मेरी ज़िंदगी से बेहतर हो। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजारी और इंशाअल्लाह मौत भी अल्लाह के लिए। मैंने अल्लाह की पैरवी की और इनाम हासिल किया। ना अल्लाह की मर्जी होगी। ये लड़के को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अल्लाह पर हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए भाई। ए लोगो, लॉर्ड सा के बादशाह सलामत नॉरिसिस ने किया है कि वो उबैद को फांसी देंगे और वो इस हुक्म को अपने हाथों से हकीकत का रंग देंगे। ये रास्ता क्यों इख्तियार किया? जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा मेरी मौत के बाद, लेकिन मेरी शर्त नहीं भूलना। ये क्या हो रहा है? अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का आका है। तुम सही हो लड़के। लोगों, तुमने सुना इस बादशाह को ये कहते हुए? अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का आका है। इस लड़के को मैंने मार दिया। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ, सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। हर चीज उसकी मर्जी से होती है, हर चीज, हर चीज। ये लड़का मर गया, खुश हो जाओ सब फौजी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बादशाह लड़के को मार नहीं पाया था जब तक कि इसने अल्लाह का नाम इस्तेमाल नहीं किया। उबैद ने खुद कुर्बानी दी है ये साबित करने के लिए कि सब कुछ अल्लाह की रजा से होता है। अल्लाह इसका खालिक है। मैंने सोचा था लड़के की मौत से लोग इस अल्लाह से ईमान उठा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सिपाहियों, इन्हें घेर लो, इन्हें फरार मत होने देना। जला डालो जो मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दे, जला डालो। ओह, ये देखो। मेरे बच्चे पर रहम करो। माँ, मुझ में ईमान है। अरे ये देखो, ये मेरा छोटा बच्चा भी बोलता है। ईमान रखने वालों के पास यकीन होता है। अल्लाह ने हम ईमान वालों से जन्नत का वादा किया है।
قرآن مجید کی سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ اس کہانی کا نتیجہ دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اذیتیں دی اور ظلم کیا مومن مردوں اور عورتوں پر، پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں نوازا جائے گا جنت سے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کے نیچے سے دریا گزرتے ہیں۔ اگرچہ وہ لڑکا اور اللہ کی پیروی کرنے والے سب لوگ مار دیے گئے شیطان بادشاہ کے حکم پر، لیکن اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے بڑے انعام کا۔ اسی انعام کی خاطر یعنی اللہ کی رضا اور جنت کی خاطر ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، جس طرح عبید نے اپنی زندگی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے اور اسی راستے میں اپنی زندگی قربان کرنے میں لگا دی،